नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 45वां शरण कमटा और अनुभव मंडप उत्सव 23 और 24 नवंबर को। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार केवल 40% कमीशन के दम पर नहीं जीती, डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस सरकार गारंटी देने में असमर्थ है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट छीनकर दूसरे राज्यों को दिए गए। अमित शाह ने की मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एक राज्य के वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि इस महीने की 23 और 24 तारीख को बसव कल्याण अनुभव मंडप आवरणा में 45वां शरण कमटा और बसवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शहर के जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को सुबह 9:30 पर गुरु बसव पूजा, मंत्र का पाठ और 6 नोक वाला झंडा फहराया जाएगा। उद्घाटन समारोह उस दिन सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। गदग तोंटादार्य महास्वामी और नाडोजा के पूज्य जगत गुरु तोंटा इलकल, चित्तरगी महासंस्थान के अध्यक्ष पूज्य डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेवरू, हारकुड़ के पूज्य डॉक्टर चन्नवीर शिवाचार्य, हुलसूर के पूज्य शिवानंद महास्वामी और नालदा के पूज्य भैरम कार्यक्रम की अध्यक्षता पूज्य सिद्धलिंग महास्वामी करेंगे और इसका उद्घाटन मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर करेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष PY विजेंद्र करेंगे। सांसद सागर खंडरे गुरु पूजा करेंगे। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य MG मूड़े होंगे। बसव कल्याण विधायक शरणु सलगार सभी का स्वागत करेंगे। कैमरामैन कपूराज का कवरेज। शरण कमट अनुभव मंडपದ ಉತ್ಸವದ 45ನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಘನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು ಸಮಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ, ಕಂದಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಮೌಢ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಿಂದೇನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆದರ್ಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರಿದ್ದಾರೆ, ದಾರ್ಶನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವತ್ತೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುವಕರ ಗೋಷ್ಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಶೋಷಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಸುಮಾರು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ನಾಳೆ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾರ ಯೋಗನೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಮೊನ್ನೆ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿ ವಚನ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ।
ಇದು 3 ದಿವಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ ವಚನ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜನ ಭಾಳ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6:30ಯಿಂದ 7:30ವರೆಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನ ನೂರಾರು ವಚನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಚನ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆಯಾ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಚನದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಚನ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಾ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರೆಸಿ ಆ 8 ತಾಲೂಕದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಂದಂಥವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಆದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು. रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ऐसे समय में जब विपक्षी भाजपा कर्नाटक में कांग्रेस पर 40% कमीशन के आरोप का इस्तेमाल कर सत्ता में आने का आरोप लगा रही है, गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने अपने गारंटी वादों के दम पर 2023 का विधानसभा चुनाव जीता है। भाजपा के आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए डॉक्टर परमेश्वर ने कहा, हम हर घर में गए और उन्हें अपनी गारंटी का भरोसा दिलाया, जिसे हमने सत्ता में आने के बाद लागू किया। यह कहना गलत है कि हम केवल भाजपा के खिलाफ 40% कमीशन के आरोपों के कारण सत्ता में आए हैं। मंत्री ने याद दिलाया कि तत्कालीन ठेकेदार संघ के अध्यक्ष ने ही भाजपा पर 40% कमीशन का आरोप लगाया था और राज्य में भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा, हमने इसी पत्र के आधार पर आरोप लगाया था। वक्फ भूमि विवाद पर डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा इस मुद्दे का इस्तेमाल समाज में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए कर सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए वादे की गारंटी योजनाओं का प्रबंधन करने में असमर्थ है और राज्य दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नीति सरकार एक के बाद एक गारंटी योजनाएं वापस लेती जा रही है क्योंकि वह गारंटी देने में असमर्थ है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने 10 किलो चावल देने की घोषणा की थी, लेकिन वादा पूरा करने में विफल रही। राज्य वर्तमान में केंद्र द्वारा प्रदान किए गए 5 किलो चावल का ही वितरण कर रहा है। जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा पर सालाना 2.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शहरी आबादी के 50% और ग्रामीण आबादी के 75% लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराती है। हाल ही में बेलगावी जिले के कटबली के पास पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दुखद घटना सामने आई है, जब एक ट्रक चालक का पीछा किया गया और एक मामूली यातायात दुर्घटना के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 पर हुई और व्यस्त राजमार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को झकझोर कर रख दिया। मृतक की पहचान संकेश्वर निवासी 23 वर्षीय
अजीम मलिक रिहान इप्पेरी के रूप में हुई है। हत्या के 8 घंटे के भीतर पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान 32 वर्षीय पारसप्पा सत्यप्पा नाइक, 32 वर्षीय हालप्पा लक्ष्मण हल्यागोल, 34 वर्षीय ईरप्पा बसवन्नी नायक, 30 वर्षीय हनुमंत विठ्ठल इडली और 36 वर्षीय अमित दीपक शिंदे के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार अजीम द्वारा चलाया जा रहा ट्रक बेंकोली के पास एक मोटरसाइकिल और एक अन्य वाहन को टक्कर मारते हुए निकल गया। रुकने के बजाय अजीम ने गाड़ी चलाना जारी रखा, जिससे वाहन में बैठे लोग नाराज हो गए। गुस्साए लोगों ने ट्रक का 1.5 किलोमीटर से अधिक तक पीछा किया और उनके साथी भी उनके साथ मिल गए। अंततः ट्रक को कांटाबली के पास रोक लिया गया, जहां हमलावरों ने अजीम को वाहन से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया और उस पर लाठियों से हमला किया तथा बार बार लात घूंसों से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इंस्पेक्टर जावेद मुशापुरी के नेतृत्व में यमकन मर्दी पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई की। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार का आज सोमवार को आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र सरकार व राज्य की महायुति सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स दूसरे राज्यों को दे दिए गए हैं। राहुल गांधी ने धारावी परियोजना समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बात की है। राहुल गांधी ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वर्तमान सरकार द्वारा फॉक्सकॉन, एयरबस जैसी 7 लाख करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाएं गुजरात में ट्रांसफर कर दी गई। इसके कारण महाराष्ट्र के युवाओं की नौकरियां छीन गई। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों की मदद हो। राज्य के लिए महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने धारवी पुनर्विकास योजना पर कहा कि धारवी की भूमि वहां रहने वाले लोगों की है। पूरी राजनीतिक मशीनरी एक व्यक्ति की मदद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। राहुल गांधी ने मुंबई में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कुछ अरबपतियों और गरीबों की विचारधारा के बीच लड़ाई है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उन्हें मिले। करीब 1 लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को देने की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की रविवार को समीक्षा की। शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी कि अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैलियां रद्द करके लौटने के तुरंत बाद यह बैठक की। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और उन्हें शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि शाह आगे के कदमों पर सोमवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ एक और विस्तृत बैठक करेंगे। सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के शव बरामद होने के बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसा के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है। मणिपुर पिछले साल मई से ही जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को सभी सीटों पर वोटिंग होगी। इसके मद्देनजर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को ठाणे शहर में आयोजित एक चुनावी रैली में कांग्रेस के आरोपों को सख्त शब्दों में खारिज कर दिया कि बीजेपी संविधान को बदलने की योजना बना रही है। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन किया था।
लेकिन अब वह झूठे आरोप लगा रही है कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने के प्रयास कर रही है। गडकरी ने आगे कहा कि कोई भी सरकार संविधान की मुख्य विशेषताओं में बदलाव नहीं कर सकती। वास्तव में आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार ने उन संशोधनों को पलट दिया था। मंत्री ने स्पष्ट किया कि बीजेपी का ध्यान संविधान की रक्षा और विकास की दिशा में है और पार्टी किसी भी प्रकार के संविधान विरोधी कदम नहीं उठा रही है। इसके साथ ही गडकरी ने सरकार की विकास योजनाओं को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण के संदर्भ में टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता है ताकि लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। गडकरी ने मतदाताओं से अपील की कि वे जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता दें और ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करें जो प्रगतिशील दृष्टिकोण से काम करे। यह बयान कांग्रेस नेताओं की ओर से बीजेपी पर संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाए जाने के बाद आया है, खासकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के बयान के संदर्भ में। पटना के गांधी मैदान में फिल्म पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदान्ना की एक झलक पाने के लिए लोगों में होड़ मच गई। भीड़ को बेकाबू होते देख पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नियंत्रण से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गांधी मैदान में हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस के कई बैरिकेड टूट गए। कुछ लोग वॉच टावर पर चढ़ गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट की टाइमिंग शाम 6:30 पर रखी गई थी, लेकिन कार्यक्रम शाम 5 बजे से ही शुरू हो गया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदान्ना के गांधी मैदान पहुंचते ही भीड़ बेकाबू होने लगी। लोग उनके पीछे भागने लगे। इस इवेंट में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदान्ना के अलावा इस फिल्म के अन्य कलाकार भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे 1997 से सीएम बनना चाहते थे। मनोहर नारायण के वक्त से सीएम पद की लालसा थी। उद्धव ठाकरे महागद्दार है। उन्होंने गठबंधन तोड़ा। उद्धव ने असेंबली में बाला साहेब की फोटो नहीं लगाई। उद्धव ठाकरे ने मुझे पॉलिटिकली खत्म करना चाहा। शिंदे ने कहा, उद्धव ठाकरे पहले से ही मुझे जेल भेजना चाहते हैं। उद्धव ने प्लानिंग कर शरद पवार से अपना नाम बुलवाया। बीएमसी के जरिए उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। राहुल गांधी से बाला साहेब को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाए। उद्धव के चलते एक एक कर दिग्गजों ने पार्टी छोड़ी। शिंदे ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे बयान में हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कहीं मौलाना एमवीए के फेवर में हमने तो कुछ नहीं कहा। लोकसभा चुनाव में एमवीए ने फेक नैरेटिव फैलाया। बिना किसी को डैमेज के मराठा आरक्षण हमने दिया। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पीएम मोदी 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ब्राजील के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का संस्कृत मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया। बता दें कि यह उनकी 3 देशों की यात्रा का दूसरा चरण है, जिसके दौरान वह 18 नवंबर और 19 नवंबर को ब्राजील में होने वाले 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ने गर्मजोशी और जीवंत स्वागत के लिए ब्राजील के लोगों का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रियो डी जेनेरियो पहुंचने पर भारतीय समुदाय के गर्मजोशी भरे और जीवंत स्वागत से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी ऊर्जा उस स्नेह को दर्शाती है जो हमें महाद्वीपों से बांधती है।
बांग्लादेश में बीते अगस्त महीने में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना इसके बाद से ही भारत में अज्ञात स्थान पर रह रही है। वहीं अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने रविवार को बड़ा बयान जारी किया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि उनका प्रशासन शेख हसीना को भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग करेगा। दरअसल रविवार को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे। इस दौरान यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार हसीना सहित उन लोगों पर मुकदमा चलाएगी जो छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों मौतों के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि मोहम्मद यूनुस बीते 8 अगस्त को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख का कार्यभार संभाला था। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। 45वां शरण कमटा और अनुभव मंडप उत्सव 2324 नवंबर में। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार केवल 40% कमीशन के दम पर नहीं जीती, डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कांग्रेस सरकार गारंटी देने में असमर्थ है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट छीनकर दूसरे राज्यों को दिए गए। अमित शाह ने की मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।